Assalamualaikum everyone. Welcome to my education world. My YouTube channel name is the MRK Academy. So, how are you, my students? Hope you all are fine and safe at home. I am also fine and I am also at home. Everyone, make sure be precautious about the COVID-19. So, today we will discuss about the various courses are offered by intermediate colleges, whether may be a government colleges, government aided colleges, private institution colleges. Any colleges are offered in intermediate. There are 4 courses: BC, MPC, MEC, CEC. But students, before going through that, I will ask you some 10th standard questions. Why? Because you are all genius students who got good marks without exams. So you are all completed your exams? No. You just pass based upon your school preparation, right? So I will ask some questions to my all 10th standard students who got 10 by 10 marks, 10 by 10 GP, I think, right? Okay. So first of all, my first question is, before we are going to intermediate, I am just asking the 10th standard questions. You need to just answer me. At the time you will pause my video and answer me through in comments. My question is, how many subjects are there in 10th standards? You need to make it stop here video, make it comment your answer, and then continue my remaining video. Okay. So according to my knowledge, 10th standard SSC, and also comment the full form of SSC. Don't be cheat here. 10th class, we have 2 subjects: languages, non-languages. We are in India country, and we are in different states. So I am belongs to the Telangana state. So Telangana will follow the 3 languages: Hindi, English, Telugu. These 3 languages will call it as conversation or communication. That's it. We need to just communicate to other party. That's the reason we learn the languages. This is one part. And the another part is non-languages. Non-languages means we are learning in 10th standard science, in science subject, biology or physics, and maths, and also social. If we are learn these 3 subjects, we will call it as survival in the world. The main purpose we are learning and earning something in future, that we call it as survival. Survival is nothing but we are living how we can live in the world in happily mood. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के कौन से कोर्सेज अवेलेबल है कॉलेजेस में और आपको कौन सा कोर्स चॉइस करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे आपको 10th के बारे में, 10th स्टैंडर्ड में जो आपको ऑलरेडी मालूम है उसमें थोड़े बहुत मेरे पॉइंट्स ऐड करा। जैसे कि आपको 10th में 2 सब्जेक्ट्स है, एक लैंग्वेजेस एक नॉन लैंग्वेजेस। आई थिंक ये बात नहीं मालूम थी, ये मेरे नॉलेज से है, ठीक है। ये हिसाब से मैं आपको बताया था, 3 लैंग्वेजेस बताया आपको जो अपने ज़्यादातर तेलंगाना में यूज़ होते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश, ये 2 इंडिया में 29 स्टेट्स है, पूरे स्टेट्स में फॉलो होते हैं। बट तेलुगु तेलंगाना रहने की वजह से तेलंगाना में तेलुगु ज़्यादा यूज़ होती है। अपने को दूसरे स्टेट्स है, जैसा गुजरात है वहाँ गुजराती यूज़ होती, कन्नाडा है वहाँ पे कन्नाडी यूज़ होती। अलग अलग स्टेट्स है, वहाँ पे उनके हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो चल जाता है। ये तो लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस सिर्फ एक दूसरों से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरों का माइंड समझने के लिए हम ये लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कन्वर्सेशन तो हो गई। और 10th में अपने को नॉन लैंग्वेजेस दूसरा सब्जेक्ट है, जिसमें अपन 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ज़्यादातर: साइंस, मैथ्स, सोशल। ये तीनों का पढ़ने का मकसद क्या रहता है, तो ये बेस पे आपको डिसाइड करना है। बहुत से 10th क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 10th तो पास हो गए या 10th पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने फ्यूचर का एम आगे क्या करना है, अपना कुछ भी 100 आउट ऑफ 50% और मैं बोलूँ 60-70% स्टूडेंट डिसाइड नहीं करते उनको आगे क्या बनना है। क्यों? वो तो अभी वो बच्चे हैं, आप लोग पूरे बच्चे हो 10th क्लास के, वो माइंड नहीं रहता आगे क्या करना। जस्ट अपना चाइल्डहुड में मस्त एंजॉयमेंट करते, मैं भी वही करा। लेकिन मेरा सजेशन है, आप अच्छा गौर से सुनिए पूरा वीडियो। आप ये 3 सब्जेक्ट्स में
डिसाइड करना 10th क्लास में आपको कौन सी क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। अगर आपको साइंस बहुत पसंद है, साइंस बहुत अच्छा समझ में आ रहा है बच्चों, तो मेरा सजेशन है, अगर आपको साइंस बहुत अच्छा आता है, साइंस में आपको दो रहते हैं, बायोलॉजी और फिज़िक्स। बायोलॉजी और फिज़िक्स अगर आप परफेक्ट हो 10th क्लास में, अगर आप परफेक्ट हो तो मेरा सजेशन है आप बाईपीसी कोर्स लो इंटरमीडिएट में। बाईपीसी कोर्स जो है ना, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये कोर्स आप करने के बाद, ये पूरे इंटरमीडिएट का कोर्स 2 ईयर्स का रहता। अगर आप इंटरमीडिएट में बाईपीसी लिए तो आपका फ्यूचर एम होगा डॉक्टरी। जैसा कि आप साइंस पसंद कर रहे हो तो आपको मालूम ही होगा बायोलॉजी पूरा रिलेटेड विद डॉक्टरी फील्ड से। तो अगर आप बाईपीसी कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर के बारे में 2 मिनट सुन लीजिए। ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बेस्ट कोर्स ये पूरा में मेरे हिसाब से एज ए टीचर मेरा सजेशन है, तो बेस्ट कोर्स फर्स्ट प्रियोरिटी में बाईपीसी को दूंगा। बाईपीसी इज बेस्ट कोर्स फॉर द बेस्ट डॉक्टर्स। वी आर द citizens of our country, India, and it is our responsibility to become a doctor and serve our country. अपने देश के लिए अपन सर्व करना चाहिए। जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत से मरीज़ों का इलाज करेंगे और बहुत से लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट करेंगे। किसी की एक की जान बचाना, ऊपर वाला भी बहुत खुश होता है। तो मेरा सजेशन है, इसका मतलब ये भी नहीं है ह्यूमैनिटी है ज़बरदस्ती इसमें लग लो, नहीं। जो स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट है, डॉक्टरी, जो फ्यूचर में एम रखता है डॉक्टर बनना है, वैसा स्टूडेंट ही इसमें जाओ। जितना अच्छा कोर्स है उतना ही डेंजर भी है ये डॉक्टरी कोर्स। इंटरमीडिएट में 2 ईयर्स पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 ईयर्स का कोर्स रहता। MBBS करने के बाद तब जाके डॉक्टर बनते हैं, वो भी फ्रेशर, जूनियर, फिर सीनियर डॉक्टर बस। तो ये रहा डिटेल्स आपका बाईपीसी। अगर आपको ये सब्जेक्ट्स बेस्ट दिख रहे हैं और आपका फ्यूचर का एम आप सोचे, या आपका पेरेंट्स का सजेशन है, तब आप ये कोर्स ले सकते हैं जिसका नाम है बाईपीसी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट का नाम जोड़कर उसको बना दिया। अगर आप बाईपीसी के गॉन थ्रू है तो आप कौन सा भी डॉक्टर बन सकते हैं। अब बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को डाउट रहता कि डॉक्टरी में कौन सा कोर्स करना, अलग अलग रहते हैं उसमें भी डॉक्टर्स में। तो आप, मेरा सजेशन ये है, जब आप इंटरमीडिएट में एंटर तो हो जाओ बाईपीसी में। बाईपीसी में 2 ईयर्स होता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तब आपके फैकल्टी, आपके लेक्चरर, आपके सर जो भी आपको पढ़ाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जो भी वो लोग फील्ड में बेस्ट हैं, आप उनसे सजेशन लो। इंटरमीडिएट में जाने के बाद, फर्स्ट ईयर होने के बाद या सेकेंड ईयर, कभी भी उनसे सेपरेट लेके उनसे सजेशन लो, क्या बनना है फ्यूचर में, कौन सा कोर्स बेस्ट रहता, आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट, एवरी रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आप डील कर लो। ये था हमारा डिटेल बाईपीसी। जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टरी करना चाह रहे हैं वो गो थ्रू जाओ बाईपीसी। तो स्टूडेंट, अभी तक अपन समझे थे बाईपीसी। तो अगर किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, या स्टूडेंट वो सब्जेक्ट में वीक है बायोलॉजी में, तो उसको और एक सजेशन है, अगर उन्हें फिजिक्स में परफेक्ट है स्टूडेंट और मैथ्स में परफेक्ट है, मैथ्स में से बहुत जने जो है ना 10th स्टैंडर्ड में पूरे सब्जेक्ट में फर्स्ट प्रियोरिटी मैथ्स को दी जाती है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज, मेथड्स, टेक्निक्स रहते हैं, उसकी वजह से मैथ्स को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट जिसमें से 100 में से 50%, मिनिमम 50% भी नॉलेज है मैथ्स के बारे में, फार्मूले, टेबल्स वगैरह सब आते हैं, उसमें अच्छा समझ में अंडरस्टैंडिंग है, मैथ्स आ रहा, तो मेरा सजेशन है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स में परफेक्ट है वो गो थ्रू जाइए MPC, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये बच्चों, स्टूडेंट्स, अगर आप MPC लोगे तो आप फ्यूचर में इंजीनियर बन सकते हो, कोई भी टाइप का इंजीनियर। जब आप MPC कोर्स करोगे तो आपको डिटेल में आपके लेक्चरर्स एक्सप्लेन करेंगे इंजीनियर के बारे में। और अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बनाया तो मैं आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद डिग्री में कौन से कोर्सेस है उसके ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो। तो आप पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, MPC देखिए। अब इसके बाद का पूरा डिटेल मत देखिए, MPC में जाने के बाद क्या रहता है वो डिटेल, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता दिया। MPC के बाद का नेक्स्ट स्टेप इंजीनियर है। अब जो स्टूडेंट्स मैथ्स में 50% भी परफेक्ट है तो MPC ले लो, बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लेक्चरर्स के, सर्स के रहती, वो लोग आपको परफेक्ट कराते सब्जेक्ट में। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको थियोरेटिकल पार्ट रहता ज़्यादा, मेन मैथ्स रहता प्रॉब्लमेटिक। अगर आप परफेक्ट हो गए तो आप इंजीनियर चल लो, अगर नहीं, यहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही, जैसा आप मैथ्स में तो परफेक्ट है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या दोनों में आप वीक है, या आपके स्कूल में अपना पढ़ाई अच्छा आप नहीं पढ़े, इंटरेस्ट नहीं लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं आता, सिर्फ मैथ्स आता, तो मेरा सजेशन है आप ये भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं पूरे फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक,
कॉमर्स, इसमें आपको मैथ्स आ जाएगा। 50% भी आया तो बस आपके लेक्चरर्स बता देंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स थियरी पार्ट है आपको। कॉमर्स है, कॉमर्स भी आपको 50% थियरी रहता है, 50% आसान प्रॉब्लम्स रहते हैं अकाउंट्स के। वो अकाउंट्स के इंशाल्लाह मैं ही बनाता हूँ, यही चैनल पे पूरे आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो भी है उससे रिलेटेड, बेफिक्र रहिए। तो MEC लेने से आप फ्यूचर में बनेंगे CA और CS। CA का मतलब है चार्टर अकाउंटेंट और CS का मतलब है कंपनी सेक्रेटरी। ये और इससे भी बहुत कोर्सेस है आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस कोर्सेस है, ज़्यादा इनकम जो कमाते हैं उसके रिलेटेड मैं ये पॉइंट्स लिखा आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग। तो आप MEC लेने के बाद अच्छा परफेक्ट स्टूडेंट बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था BPC, जो डॉक्टर बनने वाले हैं। इसमें जाओ, बहुत बेहतर रहता, पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को सर्व कर सकते हैं, एक ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल बन सकते हैं आप। लेकिन जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में तो मत जाओ डॉक्टरी में। अगर आपको इंटरेस्ट है कोई भी सामान बनाने में, कोई सामान बनाने में, खोलने में, मार्कर बनाने में, फ़ोन बनाने में, कोई भी चीज़ में आपको बचपन से रहता है, हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को एक कला रहती है, एक आर्ट रहता। अगर आपके अंदर कोई चीज़ है, किसी चीज़ को आप तोड़ के बना रहे, जोड़ रहे, कोई नई चीज़ इन्वेंट कर रहे, नई चीज़ बना के ला रहे मार्केट में, तो आप इंजीनियर बन जाओ। बाई नेचर ऑफ गॉड रहता हो, ऊपर वाले की कुदरत की वजह से आप बनते। हर एक के पास अलग अलग कैपेसिटी रहती। बचपन से मेरे अंदर क्या कैपेसिटी थी ये बनाना नहीं, ना डॉक्टरी पसंद था मेरे को, ना कोई सामान बना सकता था, मैं वीक स्टूडेंट था। लेकिन जो चीज़ एक बार कैच कर लेता था उसको 10 जनों को समझो, 50 जनों को समझो, नहीं थकता था। तो अंदर की कला मेरे को बाद में जाने, इंटर में, डिग्रीज में जाने के बाद मालूम हुआ कि मेरा एम है टीचिंग। मेरे को टीचिंग करना है, टीचर, आगे वालों को पढ़ाना है, एक ही चीज़ को 50 बार पढ़ाना है, उसको बोलते हैं टीचिंग। तो मैं मेरा कोर्स टीचिंग लिया। उसी हिसाब से आप इंजीनियर भी बन सकते हैं अगर आपको मैथ्स हो या अच्छा गया, या नहीं आप डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर में भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप MEC लेके कोई भी बिजनेस में चार्टर अकाउंटेंट, जो भी बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं वो कर सकते हैं आप। या कंपनी के सेक्रेटरी, देखे ना फिल्मों में, वैसे सेक्रेटरियाँ बन जाते हैं। और बहुत से बहुत कोर्सेस रहते हैं, वो भी कर सकते हैं आप इसमें। और आप अगर CEC लिए समझो, CEC इज़ द लोवेस्ट लेवल। इंटरमीडिएट में 4 लेवल है, BPC, MPC, MEC, लास्ट है CEC। CEC इज़ द लोवेस्ट लेवल। अगर आप BPC लिए नहीं समझ में आया, चेंज करके CEC में आ सकते हैं। अगर आप MPC कोर्स लिए नहीं समझ में आया, चेंज करके CEC में आ सकते हैं। MEC कोर्स लिए आप नहीं समझ में आ रहा, CEC में कर सकते हैं। मतलब ये अगर अपन बिल्डिंग में कंपेयर करें ना, ये बिल्डिंग में कंपेयर करें फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लास्ट फ्लोर। अगर आपको ये हाईएस्ट फ्लोर है BPC, उसके बाद MPC है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर MEC है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये कौन से भी फ्लोर पे समझ में नहीं आ रहा तो ग्राउंड फ्लोर पे वापस उतार के आ सकते हैं। ये लास्ट लेवल है जिसको अपन बिजनेस बोलते हैं। आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ को छोड़ के। अगर आप CEC, अगर आप ऑल स्टूडेंट सुनो, अगर आप CEC चूज़ करें तो आप लाइफ में एक डॉक्टर नहीं बन सकते और इंजीनियर नहीं बन सकते। डॉक्टर और इंजीनियर, ये 2 चीज़ को छोड़कर वर्ल्ड में जितने भी जॉब्स हैं वो कर सकते हैं आप। मैं एग्जांपल दे दिया बिजनेस। अब बिजनेस तो बहुत टाइप्स के दुनिया के बिजनेस है। सिंगल बिजनेस भी है, 2 पार्टनर का बिजनेस भी है, मल्टीपल कंपनीज है, डिफरेंट बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, मार्केटिंग बिजनेस है। अगर आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, उतना पैसा भी नहीं है, तो आप इसी के अंडर जॉब भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। ये CEC लास्ट लेवल है। तो ये 4 कोर्सेस है, BPC, MPC, MEC, CEC। मेरा सजेशन है ये 4 कोर्सेस में कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लो, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपका लक साथ देगा और आप एक अच्छे स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट बनेंगे और आप चाइल्डहुड से यंगस्टर के एज में कन्वर्ट होंगे। उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपके घर वालों के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको परफेक्ट होना है, आपके कदमों पर खुद खड़ना है। तो मेरा सजेशन है, ये मैं इनको बोल रहा हूँ, ये कोर्स मेरा मतलब बोल के बढ़ावा चढ़ाने का नहीं है कि ये लो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कोर्स समझा देना है, इसलिए मैं कोर्स समझा रहा हूँ। पर ज़्यादा प्रेफरेंस ये 4 में से किसी को दो आप। ये लास्ट लिमिट का कोर्स है, एक बार सुन लीजिए इसके बारे में भी। अगर आप ये 2 इयर्स का इंटरमीडिएट कोर्स ये 4 भी नहीं करना चाह रहे, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम समझो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रही तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट्स। गवर्नमेंट में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, खाली आपके ट्रैवलिंग के आपके पर्सनल एक्सपेंसेस लगते हैं। नहीं, अगर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता, अगर वैसा प्रॉब्लम है, बच्चा 10th के बाद नहीं पढ़ना चाहा, तो उसके लिए लास्ट लेवल ये है, ये अदर कोर्सेस। ये अदर कोर्सेस आपको इंटरमीडिएट को नहीं बल्कि बोलते, अलग अलग रहते इसका। जैसा आपको डिप्लोमा का कोर्स रहता, डिप्लोमा मतलब पॉलीटेक्निक रहता, आपको सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, ये जो डिप्लोमा है ये सेम इंजीनियरिंग के साथ रहता। फ़र्क क्या है, इंजीनियर को 4 इयर्स रहते हैं, इंटरमीडिएट को MPC को 2 इयर्स।
2 years प्लस 4 years, टोटल 6 years पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप फ्रेशर इंजीनियर बनते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 year 4 year के बजाय आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल करना चाहें, डिप्लोमा में कोई भी आप इंजीनियर ले लो, चाहे सिविल इंजीनियर ले लो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर ले लो, कोई भी इंजीनियर, चाहे गाड़ी बनाने वाला हो, घर बनाने वाला हो, ब्रिज बनाने वाला हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला इंजीनियर हो कोई भी कंपनी का, वो आप डिप्लोमा कोर्स चूज़ कर सकते हैं। डिप्लोमा का कोर्स रहता है 3 years का मिनिमम, मैक्सिमम आप जो कोर्स लेते हो उसके डिटेल में रहता। आप गो ऑन थ्रू जाइए इसके बारे में, ये डिप्लोमा है। अगर आप ये 4 कोर्सेज कुछ भी नहीं करें, डिप्लोमा भी नहीं करें, तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल है कंप्यूटर कोर्सेज। आप पहले मार्केट में सजेशन देखिए जॉब्स के लिए कौन से कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के कौन से चीज़ पूछ रहे हैं आपको, उसके हिसाब से वो कोर्सेज ज्वाइन करिए, आप कंप्यूटर में सीखिए, वो सीख के आप जॉब पे अप्लाई करिए। जैसा कंप्यूटर मेन बेसिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, MS ऑफिस के बारे में ज़्यादा मार्केट में रहती, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, ये सब चीज़ों कोर्स रहते हैं। तो आप कंप्यूटर कोर्स सीख के बेसिक से आप कोई भी जॉब पे जाके वहाँ पे सीख सकते हैं, जॉब कर ले सकते हैं। 3 months का रहता है, कोई भी एक कोर्स चूज़ कर लीजिए। बेसिक्स कोर्स ऑफ कंप्यूटर बोलिए, 3 months का, 1.5 month का कोर्स रहता है, वो सीख के बेसिक सैलरी पे चल जा सकते हैं। और इसमें हायर लेवल के कोर्सेज भी रहते हैं, टैली रहता, जावा रहता, ओरेकल रहता, सैप रहता, ये कोर्सेज करके भी जा सकते हैं। उस पर हायर स्टडी से हायर इनकम रहती। लेकिन हायर लेवल पे गए तो कौन से भी कंपनी पे, कंपनी वालों का रिक्वायरमेंट रहता आपका इंटरमीडिएट और डिग्री भी। किसी कंपनी में इंटरमीडिएट पे भी आपको जॉब पे ले सकते हैं, किसी कंपनियों में डिग्री कंपलसरी है। डिग्री मतलब इंटरमीडिएट के बाद जो आता है आपको 3 year 4 year का, वो कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छी जॉब मिलती कंप्यूटर की। अब नॉट डेज जनरेशन में क्या हो गया, 10th के बाद आपको ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर नहीं कर रहे और ज़्यादा स्टडी करो बोले, तो ये छोटे मोटे लो स्टैंडर्ड छोटे कंपनियाँ, छोटे बिजनेस वाले आपको अफोर्ड करके लो सैलरी में रख ले सकते हैं कंप्यूटर स्किल्स। और आपका है मैनेजमेंट कोर्स, कोई भी आप मैनेजमेंट का कोर्स भी सीख सकते हैं। मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप के कोर्सेस हैं, जैसा होटल मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, एनी मैनेजमेंट का कौन सा भी कोर्स सीख कर आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। इसमें स्टडीज़ के बारे में नहीं रहती। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अगर आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी है, खेलने का है आपको, कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा है तो मेरा सजेशन क्या है, स्पोर्ट्स भी करिए, ये चारों में से कोई एक कोर्स ज्वाइन करके स्टडीज़ भी चलने दीजिए। चारों में से बेस्ट कोर्स यही रहता CEC, स्पोर्ट्स के लिए और TV एक्टर्स के लिए, जो फिल्म मेकर्स रहते हैं ज़्यादातर उसमें डिपेंड रहते हैं, और जो फैशन डिज़ाइनिंग में रहते हैं वो लोग भी अपनी स्टडीज़ को नॉर्मली कंटिन्यू रखिए। 50%, 40%, 60% जो भी आपका एवरेज है वो हिसाब से चल के आपका ये भी साथ में चलने दीजिए, एडिशनल एक्स्ट्रा इसके साथ मिला के। तो मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स, जो भी आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें, मैं किसी में भी दबाव नहीं डाल रहा हूँ आपको कि यही कोर्स ज्वाइन करो। हर बच्चे में एक काबिलियत होती, लेकिन फ़र्क क्या है, वो काबिलियत बच्चे को मालूम होने कुछ वक्त लगता। उस वक्त से पहले उस बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसके ऊपर प्रेशर, दबाव आ जाता, जैसा मेरे ऊपर भी हुआ था। है क्या बात बोले तो, जो प्रेशर, जो दबाव आता, सबसे पहले अपने पेरेंट्स की तरफ से आता। अब बच्चे का इंटेंशन स्टूडेंट का पता नहीं, सिर्फ स्टूडेंट को भी कभी कभी पता होता है, कभी उसको भी रियलाइज़ नहीं होता है वो एज में, 10th स्टैंडर्ड में उसको आगे बनना क्या है फ्यूचर में, उसको नहीं मालूम। कुछ स्टूडेंट को मालूम होता है, अरे मेरे को डॉक्टर ही बनना है, अरे मेरे को इंजीनियर ही बनना है, बट पेरेंट्स डिफरेंट। एग्जाम्पल रियलिटी मेरी ले लो, मेरा एम था इंजीनियर बनना। मैं मैथ्स परफेक्ट आता था, मेरे खुद की क्लास को 10th वालों को मैं पढ़ा, मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को मैथ्स में परफेक्ट था। बट पेरेंट्स का सजेशन या फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली वालों के सजेशंस, रिलेटिव्स के, पूरे बोले ये ले लो सीरियसली, ये कोर्स ज्वाइन कर लिया मैं। तब मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को फ्यूचर एम में मेरे को टीचिंग करना है, टीचिंग करके पढ़ाना ही है, मैथ्स पढ़ाना है। खैर मेरा रास्ता उतना चेंज नहीं हुआ, मैं इंजीनियर हुए नहीं बन सका, खैर मैं फिर भी CEC बन के टीचिंग कर लेता हूँ, मेरे लिए बेटर है। एक बार अपन आगे बढ़ गए फिर रिटर्न आना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स, इसलिए गौर से बोल रहा हूँ, अच्छा सजेशन कर लीजिए। आपके पेरेंट्स का एम क्या है, आपका एम क्या है, और रिलेटिव्स का, वॉट एवर योर बेस्ट फ्रेंड्स का, उन लोगों को कंपेयर करो आपके एम से। आपका एम उनसे कंपेयर मत करो, आपको क्या बनना है वो एम आप दूसरों के एम से कंपेयर करिए। एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको बनना है बिजनेस ओनर, बिजनेस चलाना चाह रहे हैं कोई भी कारोबार का, आपके पेरेंट्स या कोई बाहर वाले, कोई भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो
वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियरिंग या डॉक्टर। अब आपके रिलेटिव्स में भी हर फंक्शन में ऐसा दम कर देते हैं, कौन सा कोर्स है, अरे वो रेस्पेक्ट गिरा देते हैं आपकी। आप जो कोर्स लिए ना उसके अपोजिट कोर्स की तारीफ करते हैं। तो मत बिलीव करो उन लोगों के बारे में। आपको जो कोर्स बेस्ट दिखा, पूरी जर्नी में जितने जने जो बोलना है सुनते जाओ, खामोश बैठ जाओ। आपको जो जर्नी में जो सक्सेस करना है ना, वो सक्सेस करिए, सिर्फ किसी की बात मत सुनिए। मेरे को भी मेरी जर्नी में बहुत जने टांगड़े, ये बेकार है वो बेकार है सो बोले, लेकिन मेरे को मेरा करेज था, मेरी हिम्मत, मेरी पॉजिटिविटी, वननेस बोलते ना, वननेस, हिम्मत, खुद के दम पे जो करना चाहता था, जो अचीव करना था। लेकिन कोई सजेशन देने वाले नहीं थे मेरे को। ना वो ज़माने में एंड्रॉयड था, जनरेशन था, यूट्यूब नहीं था। जो भी थे हम इनसे उनसे सजेशन, दोस्तों से, रिलेटिव से पूछ के करके ऐसा ऐसा कर लेते, अपनी होश संभाल लेते आए। तो मेरे हिसाब से मैं जो है ना CEC पढ़ा, CEC के बाद BCom कंप्लीट हुआ, डिग्री 3 इयर्स पढ़ा, फिर उसके बाद मैं MCom कंप्लीट करा। जस्ट नाउ MCom फाइनल ईयर में हूँ मैं, जस्ट कंप्लीटेड पे एंडिंग। तो स्टूडेंट्स, एक ह्यूमैनिटी की बात है, इंसानियत पे। आप एक बार इंटरमीडिएट में चले गए, गलत कोर्स चूज़ कर लिए, तो भी आपको 3 to 6 मंथ्स का टाइम रहता है, जब भी आप चेंज कर ले सकते हैं। उसके बाद आपको इम्पॉसिबल है कोर्स चूज़ करना, चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाती है आपको। एक बार आपका ट्रैक चेंज हो गया ना, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो गया था। इसलिए मेरी आपकी सलाह है, और मेरी अगर वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे भी मेरी सलाह है, प्लीज़ अपने बच्चों को क्या बनना चाह रहे, क्या नहीं, उनसे आप सजेशन लो, वरना वो फ्यूचर में जाके अपनी स्टडीज़ को ड्रॉप आउट कर देते, या पागल हो जाते, या फेल होते रहते ज़िंदगी भर, लूज़र कहलाते। इसलिए मेरा सजेशन है, इंटरमीडिएट में जो भी कोर्स बेस्ट दिखा आपको, उस कोर्स के हिसाब से लो। ये लास्ट कोर्स मैं समझाने के लिए समझाया, ज़्यादा प्रेफरेंस ये 4 कोर्सेज पे रखिए। और इसमें कुछ गलती हो गई तो वीडियो में आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा काम है, टीचर है, मेरा सजेशन है हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिविटी भी बताऊँ, नेगेटिविटी भी बताऊँ, वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। जो भी है आप ये कोर्सेज के थ्रू जाइए और पूरा वीडियो अपने दोस्तों को सबको शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे, डाउट्स रहे, मिस्टेक्स रहे, तो आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया पे भी आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है mrkacademy675@gmail.com, मेरा मेल आईडी है, उस पर भी आप जा सकते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, उस पर भी मेरा है, सेम यही आईडी है मेरी यूट्यूब की, MRK Academy। आप वो फॉलो करके मेरे पेजों को फॉलो करिए, उससे मेरे से कनेक्ट करिए, उससे आप मेरे को ऑन थ्रू अगर आपको सेपरेट और कुछ बात करना है तो मेरे को आप बेशक कर सकते हैं। आप मैसेज करके आपका नंबर वगैरह डाल लीजिए, मैं जो आपका डाउट क्लैरिफाई करता हूँ। अभी के लिए इतना इंशाल्लाह। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, डिग्री में जो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उनको डिग्री में कौन सा कोर्स चूज़ करना है, उनको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं, YPC में, MPC में और MEC में, 3 में एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं, कौन सा एग्ज़ाम कैसा क्रैक करना, क्या क्या रिजल्ट रहेगा, उसके बारे में आगे कैसा फ्यूचर एम कैसा करना पड़ता। इंटरमीडिएट के बाद वाले स्टूडेंट जो डिग्री में जाने वाले हैं, इंटरमीडिएट पास ईयर स्टूडेंट्स जो डिग्री में एंटर होने वाले हैं, उनको क्या क्या सजेशन देना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देगा। एवरी फ्राइडे सैटरडे मैं वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।